man of the moment, the man of the match, and the man who stands between India and victory. The last ball coming up, 4 runs required. It's a 6, and Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan, and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable. Just look at the crowd there. Miandad the great, they chant. Miandad the great. On August 2nd, 2024, I had the pleasure of meeting Mr. Javed Miandad, who is one of the biggest names in the history of Pakistan cricket, and I'm sure everyone is aware of the huge contributions that he's made towards Pakistani cricket. And this video is about the conversation that we had that day. I was asking him questions regarding how modern day cricket compares to older cricket, and I think the answers that he gave were really comprehensive and knowledgeable, and I was impressed with his expertise and knowledge in the way that he was answering the questions. Before we start the video, I want to note that he made me so comfortable in asking him those questions, because obviously I was nervous. Like, I had never met someone this big before, so I was obviously nervous talking to him, and that's a very natural thing. But he made me so comfortable, and he was the one who initiated the conversation, and honestly I was very comfortable talking to him by the end. I was still a bit nervous, obviously, but better than I was when I started, and I think that's a great quality to have. Especially, it's very admirable that he did that, and yeah, that's just something that I wanted to add on to there. And I also want to add on that when we were leaving his house, he came out, he dropped us to our car, and he came outside and he stood there until our car, which I think was a really nice gesture, and it shows a lot about who he is as a person, his personality. I will put timestamps in the description box regarding the questions and the different topics that we talked about, so you can just skip to the timestamp that you want to watch, but I do highly recommend that you don't skip any parts of this video. So basically on August 2nd, we went to his house. So first we went to this flower shop and we got him a little bouquet, and then it was raining really hard, and there was so much traffic, so we were basically stuck in our car for more than 2 hours before we reached. हाँ ये भी अच्छा है, पिंक और येलो और रेड आ रहा है. He even gave me an autograph, so we bought 3 tiny bats, and he wrote best of luck Raviha on there, which it was really nice. And in the following clips, you'll see my dad talking about him, and my dad has been a fan of him since he was a little kid, basically, and then later they became friends because my dad reached out, and again, he was so humble and willing to connect with his fans, basically, because they didn't know each other back then. He was so willing to connect with his fans that this eventually formed into basically a friendship. Be open and welcoming to anyone and everyone is a really good quality to have. Hi guys, so if you ever thought that Virat Kohli, Rahul Dravid, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Sachin Tendulkar, Sanjay Manjrekar, Dean Jones, Brian Lara, you thought they were the king of cricket, then get ready to meet the emperor of cricket. Standing world record of youngest ever to score a triple hundred in any kind of cricket. He scored 311 when he was 17-year-old. That record still stands after 51 years. Made another world record which is still standing, youngest ever to make a double hundred in test match cricket, which he did in 1976. Scored 206 in his very first test series against New Zealand at this very city, Karachi National Stadium. And then there is a long list of records and achievements, and he is the only cricketer in the world who scored 9 scores of 50 plus in one-day internationals. That world record still stands. And for the record, Pakistan cricket team never ever lost a single match if Miandad is on the crease.
So basically the whole conversation basically lasted around 35 minutes. The footage I had of the conversation was 35 minutes long, and I barely cut anything out. I only cut out pauses because I think it's important to keep in everything he said, because he obviously put in thought to his answers, and I think that it's really important to listen to them. They are very valuable. And near the end, we also talked about how to motivate yourself before a performance, but this can be used in any sense before doing anything that holds importance to you. And we also talked about how to deal with failure, how to avoid failure. He gave some tips and some life lessons regarding that. So I think that this conversation was really valuable, and I'm grateful to have had this opportunity to speak to him about so many different things. And I wish I was a little bit more confident. I think at that time I was really nervous, but I really wish I was a little more confident. If I had the chance to do it again, I would definitely be more confident and ask more questions. And yeah, but you know what, there's a first time for everything. So I think that I did a good job. So yeah, I'm gonna stop talking now and I'm going to let you guys watch the video. So I hope you stay tuned till the end, and I will see you when the video ends. सबसे पहले तो ये है कि आप अमेरिका में रहती हैं और अमेरिका से आई हैं, तो आपने वहाँ कोई क्रिकेट देखी? वहाँ पे वैसे तो क्रिकेट इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है वहीं पर हुआ है, तो उसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलर है। अब वहाँ पर भी लोकल टीम्स बन रही हैं जो मैं देखी हैं। क्योंकि आपके डैड जो थे ना, अब्बू जो थे, साइक्लोपीडिया थे बिल्कुल क्रिकेट पे। मेरे साथ इनका बहुत साथ रहा है और हम क्रिकेट पे लिखते भी रहे। अब्बू आपके इंटरव्यू लेते थे, फिर हम उसको ना पब्लिश भी करते थे ज़्यादा कुछ, तो उसका जो एक बैक रिजल्ट होता था वो बहुत अच्छा आता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके डैड को, अब्बू को जो है काफ़ी नॉलेज भी थी। तभी आपने पूछा कि मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से क्रिकेट का शौक़ था। मतलब मेरे फादर जो थे, अल्लाह बच्चों को, उनको बड़ा शौक़ था, उनकी वजह से हम भी खेलते थे। छोटे थे जब खेलते रहते थे, उन्होंने इंकरेज भी किया हमें। तो कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फील्ड में इंकरेजमेंट जो है ना वो बहुत मायने रखती है, और किस वक्त आपको है ना ये चीज़ें सारी मिल रही हैं। छोटा था, क्रिकेट खेलता था, और मेरी कान पकड़ाई होती थी जब मैं घर पे जाता था। फादर इन्वॉल्व होते थे, वो पूछते थे आज क्या क्या कैसे क्या, तो वो फिर गाइड करते थे। यानी कि 40, 50, हाँ 50 आउट नॉट आउट, मैं कहता आउट, कहता है 50 के बाद कोई आउट नहीं होता, 50 के बाद 100 करते हैं, 100 के बाद 150 करते हैं। आई मीन दिस इज़ द वे ना, उन्होंने मतलब मेरी क्रिकेट में पूछते थे और मुझे बताते थे। तो आपको जब डोमेस्टिक से आप इंटरनेशनल में गए तो आपको क्या ज़्यादा डिफरेंस लगा, या उसमें क्या मुश्किलात है जो आपको ओवरकम? क्रिकेट एक है, सेम ही है, चाहे आप हाई लेवल पे खेलें या आप स्कूल में खेल रहे हैं या बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, रोड पे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों उसमें चेंज नहीं है। चेंज होती है आपकी अपनी सलाहियत के ऊपर, कौन से टाइम पे आप क्या खेल रहे हैं, किस तरह से शॉट खेल रहे हैं। एक ही गेम खेल रहे हैं और बॉलिंग भी तकरीबन सेम आती है। ये नहीं है कि पाकिस्तान को अलग आती होगी या दूसरों को अलग नहीं। हाँ, आपको बस पता होना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए कि क्रिकेट को किस तरह खेलनी चाहिए, फॉलो करें, बड़े प्लेयरों को फॉलो करें, और इस तरीके से आपको है ना फ़ायदा होता जाता है। जब आप परफॉर्म करते हैं, कब आउट होते हैं आप, कोई 50 रन के बाद कभी कोई आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 बनते हैं, 100 के बाद 150 बनते हैं। इस तरीके से भूख रखनी चाहिए कि है ना, एपेटाइट है ना फुल नहीं होनी चाहिए, आप हंगरी होने चाहिए रन्स के लिए। कोई बहुत हाई क्लास क्रिकेट खेल रहा है या इंटरनेशनल खेल रहा है तो उसको ऑटोमेटिकली बेहतर समझा जाता है, और जैसे कोई डोमेस्टिक खेल रहा है तो उसको नहीं समझा जाता। जबकि देखिए क्रिकेट आसान भी है, बहुत आसान है, और मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनको आती नहीं है और जिनको पता नहीं है। जिसको आती है, जो खेल रहा है, उससे पूछे तो वो तो बड़ी आसान है, वो तो 100 कर रहा है, 200 कर रहा है। इस चीज़ के ऊपर जाना चाहिए बच्चों को कि हम उनसे मालूम करें, इससे आपको क्रिकेट की और ज़्यादा समझ भी आएगी, और जब आप खेलने लगेंगे, जब इस मौके पर पहुँचेंगे तो आपको ये चीज़ रिमाइंड कराएगी कि नहीं अब ना आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो क्रिकेट में भी काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, अब डिपेंड करता है कि उनके साथ प्लेयर कौन से हैं।
कोच कौन सा है, कोच की क्रेडिबिलिटी क्या है। अच्छा कोच होगा, लाजमी बात है वो प्लेयर को जो है बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से उसको देखते हुए है ना, वो उसको है ना ग्रूम कर देता है। प्लेयर को देख के ना, उसकी हर चीज़ करके ना, मैं खुद ग्रूम कर देता था। मुझे पता है कि इसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उस तरीके से लेके आता था। वो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गए थे, वो परफॉर्म करते थे, अच्छी चीज़ें हमें मतलब रन्स मिलते थे, बिल्कुल मिलते थे। जब मैं पाकिस्तान टीम का कोच था तो उस वक्त मेरे पास बड़े यंगस्टर थे। ये बड़े जितने भी वसीम अकरम भी, वक़ार यूनुस भी, हमारे बड़े जितने भी बैट्समैन थे, सईद अहमद भी थे, सारे ये मेरे अंडर रह चुके हैं। तो ये था कि लाजिमत क्रिकेट जो है जो खेली होती हम उनको एक्सपीरियंस देते थे, बताते थे। जो चीज़ गलत होती थी वो गलत बताते थे, तो वो मेहनत करते थे, मेहनत करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। ऑब्स्टिकल होता था या तो क्रिकेट में या फिर जैसे मेंटली चैलेंजेस, आपका मतलब कि चैलेंजेस तो देखो हर चीज़ में आते हैं, नॉट ओनली क्रिकेट तो नहीं है, इसके अलावा बहुत चैलेंजेस होते हैं। आप जब घर में हो, लाइफ होती है, स्टार्ट होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, आप पहले चलना नहीं सीखते, किस्सा फिर चलना सीखते हैं, फिर चलना, दौड़ना, भागना, तो हर चीज़ में चैलेंजेस है। और चैलेंजेस की वजह से सारी है ना, मतलब हर चीज़ बनी भी है। अगर ये चीज़ जो है जो अपना लेता है उसको एकदम कहने से वेल डन, बहुत अच्छा सारा कुछ, वही चीज़ कुछ है लेट हो जाते हैं, नहीं कर सकते, उनको है ना वो दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो चैलेंजेस तो लाइफ में मिलेंगे और उसको फेस करना और उसको करना जो है यही तो एक आर्ट है। एक आदमी में इतनी कैपेबिलिटी है कि जो चैलेंजेस होते हैं उसको वो बड़े आराम से और अच्छे तरीके से वो बता देते हैं और वो एकदम पता भी नहीं चलता है कि आपने क्या एक शख्स को बताया, किस तरीके से उसको निकाल भी दिया। आपके जो कहने का मतलब, जो कहेंगे आप, जो बताएंगे, वो आपका बताने का मकसद और मतलब क्या है और आप किस तरीके से समझाते हैं। एक ये भी बड़ी बात है कि अगर समझाने वाला अच्छा हो तो वो चैलेंजेस को बड़े आराम से ले लेता है और उसकी समझ आ जाती है। पाकिस्तान जो है वो ओवरकम नहीं कर पा रहा कोई चीज़, या वो अपना बेस्ट नहीं दिखा पा रहा, स्पेशली इंडिया के सामने। देखिए क्या हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती नहीं है, कौन सा वाइल्ड हो रही होती है और उसमें आपको पता कोई भी चल जाए, बस वो भी बात रह जाती है। आपने अच्छा करना है, सामने वाली टीम को खेलेंगे, खिला के जब भी अच्छे होंगे ना। अगर आप खेलेंगे नहीं, वन सा वाइल्ड खेलेंगे तो वो चैलेंजेस तो फिर रहते ही हैं। वो अप एंड डाउन किसी के साथ भी रह सकते हैं। पाकिस्तान पे इतने रेगुलर क्रिकेट नहीं मिलती है बनिस्बत दूसरी जगहों से, लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये रेगुलर क्रिकेट खेलती है। इनकी होम भी होती है और अवे भी होती है एवरी ईयर, इनके कैलेंडर ईयर्स बने हुए हैं। इसी तरीके से इंडिया भी अच्छी क्रिकेट खेलती है, वेयर पाकिस्तान जो है वो उस लेवल पे नहीं खेलती, मगर जो स्केड्यूल इनके बने हुए हैं। पहले ये होता था बाटन उस पर होता था कि आपस में भी हो जाता था कि बोर्ड एक बोर्ड को है ना रिक्वेस्ट करती थी, आपस में है ना क्रिकेट चलती रहती थी। अब क्या हो गया कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि आईसीसी के ऑलरेडी स्केड्यूल बने हुए होते हैं और उसी के ऊपर है ना क्रिकेट खेली जा रही है। लाजिम बात है कि उस तरह से कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, ये लोग बड़ी रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि अक्सर जो है टीमें जो है वो डॉज दे जाती हैं, कंट्रीज जो है डॉज दे जाती है। और इसमें आईसीसी का कसूर है, क्योंकि इसमें आईसीसी को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो भी है ना आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ये बोर्ड है एक तरीके से, और यही फिक्स होते हैं और जो ना खेले ये ना खेले तो इसके ऊपर एक्शन होने चाहिए। ये चीज़ें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से है ना हर आदमी, हर जो कंट्री है वो अपनी चला रहा होता है कि है ठीक है नहीं है। अब हर एक जिसके साथ कौन ज़्यादा है, किसके साथ कौन ज़्यादा है, इस तरीके से क्रिकेट खेली जा रही है। रेगुलर क्रिकेट जो होनी चाहिए वो अभी भी है ना मिसिंग है। एक फेमस मैच है जिसमें आपने लास्ट बॉल पर 6 मारा था, उसमें या तो पूरे मैच में कोई ऑब्स्टिकल आपको फेस करना हो या उस वक्त
बिल्कुल क्या था वो मैच, तो एक मैं कहूँगा तारीखी है। मैं भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि ऐसी क्रिकेट कभी खेली नहीं, और मगर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी एक आके अच्छी क्रिकेट खिलाई। देखिए लाजी बात है, क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से खेले, क्रिकेट को सोच समझ के खेले, क्योंकि जो मैच जो था वो ऐसा था कि स्कोर भी ज़्यादा था, फिर हमारी विकेटें गिर गई थी, मैं बैटिंग कर रहा था, तो मेरे जहन में कुछ और चीज़ थी कि नहीं हम मैच तो जैसे तकरीबन हार ही गए हैं, क्योंकि इतना है और प्लेयर भी आउट हो गए, ये वो इस तरीके की सोच सादी थी कि अपने आप से बात कर रहे थे कि ठीक है जावेद तुम खड़े रहो, खेलो, मतलब मेरा काम है कि यार एंड तक खेलो, देखते हैं क्या होता है, कम रन मार्जिन से हार जाए, वो इतनी मार्जिन से हार जाए कि कोई इतना ज़्यादा दुख ना हो। एक था कि हमारे 4-5 जल्दी आउट हो गए थे, और उसके बाद है ना इतना ह्यूज स्कोर था, तो एक होता है ना कि आपके पता चला 150-200 रन से आप हारे, एक होता है कि आप 8-9 विकेटों से हारे, वो हार जो है ना वो थोड़ी तकलीफ दे होती है। मगर एक ये होता है कि फ़ाइट करके टीम हारती है, जीतती भी है, और फाइट की आपने फाइट की और एक अच्छा क्रिकेट मैच हुआ, और जो हार जीत गेम की होती है इस तरीके से लेते हैं। मगर लाजिम बात है जब इंडिया पाकिस्तान का, तो दोनों टीमें हारना नहीं चाहती, एक टीम तो हारेगी। तो जो छक्के वाला शॉट जो था वो यही था कि एक स्टेज पे वो आ गया था कि दोनों कंट्रीज़ को पता नहीं था क्या होगा, कौन जीतेगा, इतना सन्नाटा हो गया था। मगर हारा हुआ मैच जो था हमने उनसे है ना एकदम एक तरीके से गले से निकाल के छीन के जैसे है ना होता है, तो वो क्रिकेट दिल को लगती भी है। और फिर जहाँ इतना क्राउड हो और दो मुल्कों की यानी कि क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी हो, तो फिर कुछ ना कुछ असरात जो है ना वो आ ही जाते हैं, और जो होने नहीं चाहिए। क्रिकेट को हर आदमी को, हर कंट्री को क्रिकेट की तरह रहना चाहिए, लेके चलना चाहिए कि क्रिकेट में हार जीत होती है, कोई बात नहीं, मगर इसी तरीके से भी क्रिकेट भी सीखी जाती है, आपको तजर्बे भी आते हैं और आप क्रिकेट भी सीखते हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं कि जैसे लाइक फाइट करनी चाहिए, तो जब मैं देखती हूँ आजकल के मैचेस, तो मतलब उसमें ये नहीं नज़र आता, जैसे अगर कोई हारा हुआ मैच है तो उसमें ये नहीं नज़र आता कि जो टीम है वो एफर्ट कर रही है लाइक फाइट करने के लिए। प्लेयर को मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी चीज़ें सीख के आनी चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त है तो पोजीशन क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जो उनके साथ और उनका स्टाफ है उनको भी पता होना चाहिए, सीनियर प्लेयर्स उनको भी पता होनी चाहिए, और मेन जो चीज़ है जो कोच है जिसको लेके गए हैं आपने, तो उसकी नॉलेज क्या है, उसने क्या बताना है, क्योंकि उसका फ़र्ज बनता है ये चीज़ें को है ना गाइड करना, बताना भी, क्योंकि प्लेयर तो खेलने वाले हैं, मगर उनके साथ बातें करके उनको बताना, उनको स्ट्राइक पे लेके आना, टाइम टू टाइम है ना इन्वॉल्व होना। अगर आपको ही पता नहीं है कि ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर लाजिम बात है कि वो आप प्लेयर को बता भी नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि आजकल तो कोच जो है बड़े आसानी से मतलब वीडियोस देख सकते हैं, तो हर चीज़ है ना हर जगह है ना रिकॉर्ड हुई भी होती है, आप निकाल सकते हैं। तो आजकल सब तकरीबन यही हो रहा है, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ये तो सारे स्टडी करके जाते हैं, इनके पास कैसेट लेके जा रहे होते हैं, अपने प्लेयरों को समझा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल एक लाइफ है, और लाइफ में हर आदमी करता होगा, मगर अब देखना ये है कि प्लेयर उसके ऊपर उतरता है या नहीं उतरता है, ये प्लेयर की जिम्मेदारी। बड़े प्लेयर्स के साथ आप खेले हैं मिसाल, उनको आप कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए आजकल के जो प्लेयर हैं, जैसे अभी नाम लिए, वो भी अच्छे हैं, मगर आज के लिए अब कंपेयर करना जो है ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब कंपेयर आप करेंगे तो आपको सेम चीज़ सारी लेके आनी पड़ेगी। जो फेस मैंने बॉलिंग की है वही बॉलर आप लेके आए, और जो आज खेलना उनको खिलाएं, और फिर उसके बाद कंपेयर करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कौन किस तरह खेल रहा है, कौन किस तरह खेल रहा है। मगर इस तरीके से आप बहुत मुश्किल है कि कंपैरिजन करें। हर प्लेयर अपने अपने टाइम में अच्छा है, ठीक है, आप रेटिंग में आ गए, ये आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ग्रेट प्लेयर आ गए, राइट? क्योंकि जो पीछे जो प्लेयर थे ना, उनकी क्रिकेट बड़ी हार्ड थी, इतनी आसान क्रिकेट नहीं थी, इतनी आसान फेस करने वाले बॉलर नहीं थे, बहुत ज़्यादा टफ थे। आजकल की क्रिकेट ठीक है, क्रिकेट है, बेस्ट ऑफ लक, तो उनको ये मिल रही है,
मगर कंपैरिजन करना जो है वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओल्ड इज़ गोल्ड वाली हिसाब है, क्योंकि हमने जो या हमारे से और पहले वाले जो प्लेयर्स थे उन्होंने जो क्रिकेट खेली और जो क्रिकेटों को जो फेस की है, बॉलिंग की है, जो कंडीशंस फेस की है, आजकल तो हर चीज़ हर फैसिलिटीज़ है। उस वक्त तो गिली विकेट भी मिल जाती थी, उस वक्त तो आपको है ना बस खेलना होता था, कितनी रफ विकेट भी मिल जाती थी, हर कंट्री अपने हिसाब से विकेट बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट को टाइम टू टाइम जो है सारी चीज़ें सही थी, मगर कंपैरिजन करना जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि उसको आप कवर अप नहीं कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान एक मैच हारा था 120 रन जो आपने शायद सुना होगा, तो उसमें लाइक बहुत ही कम टारगेट था लेकिन वो हार गए थे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे टीम मतलब इतनी अच्छी अगर नहीं परफॉर्मेंस दे रही तो क्या जो क्रेज है क्रिकेट में क्रिकेट गेम ही यही है, इसका कुछ पता नहीं है कि हैट्रिक भी हो जाती है, हैट्रिक से मतलब 3 बॉलों में 3 विकेटें भी मिल जाती हैं, ये भी पार्ट ऑफ क्रिकेट है कि लाइफ। तो ये कंट्री का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और ख़ास तो जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, क्योंकि वही चलाते हैं, उन्हीं के है ना ऊपर सारा प्रेशर भी आता है, सारा कुछ आता है। तो मेक श्योर कि आपकी स्टाफ जो है, जो आपने लिया हुआ रिक्वायर किया हुआ है, आया वो बहुत अच्छा है, इस काबिल है, यानी कि जो क्रिकेट खेली जा रही है उसके मुताबिक है, यानी कि वो अच्छा गाइड कर सकेंगे, बता सकेंगे, नहीं बता सकेंगे। फिर प्लेयरों के ऊपर भी है कि प्लेयरों को किस तरह गाइड करना, सही है ना। ये भी बहुत ज़रूरी है कि प्लेयरों को उस तरीके से प्रैक्टिस करानी है, जो चीज़ आनी है वो प्रैक्टिस आपको करानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से बॉलर कैसे आएंगे, किस तरीके आएंगे, वही एक्शन से, क्योंकि ये चीज़ें मैं करता था और मैं प्लेयरों को उस तरीके से कराता था। क्या क्या चीज़ें मैंने यूज़ की, यानी कि स्लैब भी यूज़ किया, आजकल तो सब यूज़ कर रहे हैं। आई एम द फर्स्ट वन जो मैं ये स्लैब सिस्टम और ये वो चीज़ें सारी निकाली थी वो, तो अपने माइंड से मैंने सारी चीज़ें थी। पाकिस्तान टीम को जब मैंने हैंडल किया माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हमें, बड़े यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमारे प्लेयर बड़े अच्छे ऊपर आए, बॉलिंग हमारे अच्छा, यानी कि हमारा एक नाम क्रिकेट में जो आया। और अब टाइम टू टाइम दूसरे लोग आ गए, अब ज़्यादातर रिलाई करते हैं मूवी के ऊपर, वो देख रहे हैं, वो अपनी जगह है, मगर प्रैक्टिकली जो है क्रिकेट मोर है, मेन ग्राउंड है, मेन विकेट है और आपकी प्रैक्टिस है, आपको खुराक कौन है, प्रैक्टिस करने का जो तरीक़ेकार है वो क्या है, और देखना चाहिए कि आया ये बच्चे कर तो रहे हैं, मगर ये सही कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब कोच को खुद इतना नॉलेजेबल होना चाहिए प्रैक्टिकली भी और वैसे भी। जो कोच है उसको अपने आप सेटिस्फाई करना पड़ेगा पहले तो प्लेयर से कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड, इन्होंने ये वर्क किया है, ये किया है, वो किया है, सारा कुछ किया है, मैंने जो बताया था ये सारा कुछ किया है, राइट। फिर होमवर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो टॉक है, जो प्लेयरों को लेके चलना है, कोच ने बताना है, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, जावेद भाई एक सवाल ये आपने एक दफ़ा जिक्र किया था मेरे सामने, मैं चाहता हूँ आप इनके सामने करें। और टीनेजर्स आजकल जब आप जाया करते थे मैच में, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को मोटिवेट करते थे, तो वो क्या तरीका? ये चीज़ क्रिकेट के लिए नहीं, ये चीज़ हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हर चीज़ के लिए है कि अब आपने जैसे बेटी है नहीं है कि आपकी डिबेट है, तो डिबेट से पहले आप क्या करोगे कि यस आपने प्रिपरेशन करनी है, तो सी योर ओन सेल्फ, मिरर के सामने आप खड़े हो और सारी चीज़ करें जो आपने करनी है, राइट। और आप अपने एक्सप्रेशन देखें, आया सही है या नहीं है, तो अपने आप को खुद ही आप है ना देख लेंगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी, और आप अपनी गलती जो होगी छोटी मोटी जो भी वो खुद आप है ना आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर वो चीज़ नहीं होगी। तो ये आई लर्न फ्रॉम माई
अल्लाह बख्शे मेरे फादर, उन्होंने मुझे ये दी थी कि तुमने अब स्पीच करनी होगी, तुम कप्तान हो, जवाब दो, सवाल करो, जवाब दे दो, तो आप किस तरीके से दे दो, क्या बात कर दो, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें ना एक पार्ट ऑफ यानी कि टीचिंग है। हो सकता है कि कितनों को नहीं पता चलेगा। चलो ये जो मैं बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि अगर जो सुनने वाले हैं और जो खेलते हैं क्रिकेट से वो करते हैं, वो इंशाल्लाह ये चीज़ को रिपीट करेंगे, देखिएगा। और हर चीज़ में आप रिपीट कर सकते हैं, यानी स्कूल की डिबेट है, कोई भी असाइनमेंट मिलता है, उसको आप इस तरह कहेंगे आपने कर लिया है, अब कर लिया, कैसे किया है, किस तरह किया, तो वो सारी डायरेक्शन जो चीज़ें हैं वो नेचुरली आपके अंदर आ जाएंगी, पैदा हो जाती है। ये कुदरत का खेल है, अल्लाह का। वो माइंड देख रहा होता है ना, तो वो लर्न भी कर रहा होता है। हमारा दिमाग जैसे जैसे देख रहा है, खुद से लर्न कर रहा है, फिर खुद ही करेक्ट कर रहे हैं। जी निज़ाम जी है सही। कि देखें, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं दे दूँ कि अमूमन आप सपोज 9 बजे उठते हैं मॉर्निंग में जी, मगर कभी आपको 8 बजे उठना होता है तो आप उठ जाते हैं ना। वो क्यों उठ जाते हैं? दिमाग में आपकी कमिटमेंट होती है। रात को जब आप सो रहे होते हैं, आपको पता है कि मैंने सुबह 8 बजे जाना है, सही, और आप 8 बजे उठ जाते हैं। और वैसे आप है ना सो गए तो सो जाते गए, हैं, आपको पता ही नहीं 8 बजे या 9 बजे जो भी ठीक है, आराम से उठ जाते हैं। सही, कमिटमेंट, बॉडी की कमिटमेंट आपसे है, माइंड के साथ है, सब चीज़ के साथ, सब कुछ उससे अटैच। मखलूक अल्लाह ताला ने एक इंसान को वो बनाई है कि कोई भी चीज़ में पीछे नहीं है। सही, बिल्कुल। जिसको जो पता है वो पता है। अगर आप बुजुर्गों के पास जाएं, वो आपको कितनी चीज़ें बता देंगे। सही, देखें आप, हम तो नहीं, अब जो बुजुर्ग हैं वो भी जो लोग सुबह तहज्जुद में भी उठते हैं, पढ़ भी लेते हैं, उठ भी जाते हैं, सब कुछ होते हैं, एज भी होती है, तो ये कुदरत का निज़ाम बिल्कुल है। सही। तो कमिटमेंट आपकी है। जो बुलीज़म होता था क्रिकेट में, जैसे डेनिस लिली ने आपको किक मारी, डेनिस लिली वाली जो थी ना, वो हमारी कुछ कुटुंब में मतलब थोड़ी सी एग्रेनेस चल रही थी, राइट। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट जो है ना, वो चीज़ हो गई। उसने किक तो नहीं, पीछे से ना यूँ पैर ही किया था, थोड़ा पैर यूँ लगाया था मुझे, जैसे ना, जैसे तो वो जोक में भी ये करते ना, तो उनको भी नहीं पता था कि ये चीज़ इस तरह जाएगी, और मुझे भी नहीं पता। मगर एक्सप्रेशन जो उस वक्त का जो हीट ऑफ द मोमेंट जो चीज़ें चल रही थी ना, उसकी वजह से मेरा जो एक्शन आया ना, वो डिफरेंट आया, और वो उसका भी एक्शन जो था ना, वो डिफरेंट। देखने वाले तो लाजिमत आवाम में अच्छा नहीं लगा, वो टीवी पे भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी क्रिकेटर को या मेहमान को या कोई भी ऐसा आपके पास आएगा हो, तो आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए और ना करना चाहिए। यानी कि आप अगर पाकिस्तान में अगर कोई टीम आती है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमें गलत ट्रीट नहीं करना चाहिए, चाहे एग्रेसिव हो, ये वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका घर का इमेज ख़राब होगा कि फला जगह तो ये वो, क्योंकि लोगों को नहीं पता चलेगा अंदर हुआ क्या है। मगर वो इमेज जो है ना, वो इतना फ्लैश होगा ना कि उसका फिर आप ना जवाब ही देते जाएंगे कि यार ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई इतनी वो नहीं थी, वो हीट ऑफ द मोमेंट या ऐसे है ना, एक सर्कमस्टांसिस में आप होते हैं, तो वो गुस्से में है, और कभी गुस्से में कोई आपको कहे तो आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाता है आपका जो कहने का लैंग्वेज, ये वो सारी चीज़ डिफरेंट का मूड था। उसने पहले आपका रास्ता रोका, वो हमारी चल रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त ये था कि बातें करना, बोलना, ये चीज़ें बिल्कुल ओपन थी, कोई ऐसी वो नहीं थी, और उसको कोई इतना बड़ा वो सीरियस भी नहीं लेते थे, राइट। मगर लाजमी बात है कि कोई कंट्री जो है वो जा रही है फर्स्ट टाइम, टू टाइम, जिसको नहीं पता, कोई ना कोई थोड़ा सा रिएक्शन तो आएगा। ये कुछ हो गया, वक्त सही नहीं था, टाइम सही नहीं था, और हीट ऑफ द मोमेंट एक दोनों में चीज़ हो गई, सडनली हो गई। किरण मोरे का जो मशहूर है, आपने जंप्स लगाई थी इंडिया पर, वो चीज़ें चलती हैं कि वो जिस तरह से एक इमिटेट कर रहा था आदमी के, यार तुम तो ऐसे जैसे अपील करते हो, जैसे है ना कोई है ना आदमी किसी से लड़ के है ना मांग रहा है, दे ये वो। उस वक्त की क्रिकेट में ये चीज़ें थी, मगर कुछ जब ये ज़्यादा बढ़ती गई तो कोड ऑफ तो उसकी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट और ये चीज़ आई।
मगर हम वो उस जो इंसिडेंट्स हैं उससे पहले तो और भी बहुत हुए, बड़े बड़े हुए हैं, मगर वहाँ तो जेंटलमैन होता था। एंड में हम ऑस्ट्रेलिया होते थे, हमें पता है कि आफ्टर मैच जब ख़त्म हो जाता था तो एक पता चला कि हमें उनके ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता था, बैठना पड़ता था, बातें करनी पड़ती थी, आधा घंटा ये वो करना होता था। और जब नेक्स्ट डे पता चला कि ये अपोजिशन जो होम है, होम टीम जो है वो हमारे पास आती थी, वहाँ बैठ के गप्पे शप्पे मारना, बात करना, ये करना, डिफरेंट नहीं होता था। सो लिली से आपकी सही थी बात? बिल्कुल। आपके हवाले से सक्सेस का ज़्यादा जिक्र आता है, मतलब आपकी जो कैरियर है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल और सक्सेस के हवाले से याद किया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉन्ग करियर भी माशाल्लाह रहा जी। और बड़ी छोटी एज से है ना रहा। और उस वक्त लाजिमत एज वाइज हम छोटे थे, मगर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट जो थी वो अल्लाह ने बड़ी अच्छी दी, उससे इज़्ज़त दी, इज़्ज़त मिली, सारी कुछ मिली। तो ये सारी चीज़ें है ना, इन्वॉल्वमेंट जो है ना हो गई। और फिर जब छोटा जब मैं था तो ये था कि यस, मुझे घर से भी बड़ी अच्छी क्रिकेट की नॉलेज मिली हुई थी, बताते थे। यानी कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था खेल के आता था क्लब क्रिकेट भी, तो माय फादर वाज माशाल्लाह वो इन्वॉल्व, उन्होंने क्रिकेट खेली थी। माय ब्रदर उन्होंने भी क्रिकेट खेली, तीनों चार भाई उन्होंने भी मतलब क्रिकेट। तो एक क्रिकेटिंग का मतलब माहौल था। और फादर जो थे अल्लाह बख्शे वो क्रिकेट के बड़े मेन थे, वो खिलाते भी रहे। एक क्लब का मुस्लिम खाना करके था वहाँ पर, उसको मैनेज भी करते थे, खिलाते भी थे। वहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर खेले, टेस्ट क्रिकेटर भी खेलते थे, सब खेलते थे। तो जो हमारी लोकल क्रिकेट होती थी तो उसको भी, और फिर वो मेंबर भी रहे। कराची क्रिकेट एसोसिएशन एक होती थी यहाँ पर जो मैनेज करती थी क्रिकेट, हर चीज़ जो मैनेज करती थी, टेस्ट मैचेज मैनेज करती थी। तो वो एक बॉडी थी जिसको कराची KCCA हो गई है, पहले KCA होती थी, कराची क्रिकेट एसोसिएशन। उसमें बड़े अच्छे नामवर लोग थे, बड़े बड़े मतलब अच्छे जगह के लोग थे, और उनकी बॉडी बनी हुई थी और वो हर चीज़ को संभालती थी, लुक आफ्टर करती थी। तो क्रिकेट पाकिस्तान में इसी तरीके से चली है। फिर कुछ इंडिविजुअल आ गए जिन्होंने अपनी टीमें बनाई, सबने इंडिविजुअल बना के क्रिकेट होती रही। तो मेन जो चीज़ है कि जिस जगह पर भी कंट्री में जो स्पोर्ट दुनिया में खेली जा रही है वो स्पोर्ट खेलनी चाहिए, क्योंकि देन यू कम कि आप भी है ना, आप अपने आप को मैच कर सकते हैं विद ऑल द कंट्रीज, राइट। और आजकल क्रिकेट स्पोर्ट्स हर चीज़ जो है वो हर जगह होती है, जिम्नास्टिक होती है, जिन जगहों की जो है रोइंग हो रही है, हर चीज़ होती है। और अब टूर्नामेंट होते हैं, बड़े बड़े ओलंपिक्स भी होते हैं। तो उसके लिए कंट्री को, अपने कंट्रीज़ में बच्चों को ये सारी चीज़ें मुहैया करनी चाहिए। आप कभी डिसहार्ट हुए, कभी मतलब फेल होता है इंसान, कभी डिसहार्ट हुए, हिम्मत हारी, कभी फिर कैसे अपने आप को Disappoint. उठाया? मतलब मैं इनके हवाले से पूछ मतलब रही हूँ, जैसे कैसे ताल्लुक? आपने आपको कैसे ऊपर लाए? देखिए ये इसलिए जब आप पहले तो आप जिस चीज़ में जा रहे हैं उसको स्टडी करें कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेरा ये होता था, मैं आज भी है ना ये कहता हूँ कि यार मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, नंबर 1 मैं लेता हूँ, वर्ष क्या होगा, सबसे पहले मैं इस पे जाता हूँ कि ये चीज़ में वर्ष के लिए आप prepare होते हैं। वर्ष चीज़ है वो क्या होगी, फिर उसके बाद आपका माइंड बनता है। आई विल मेक माई माइंड कि यार बस से बस अगर ये इतना % है तो कोई बात नहीं, चांस लो उतना ही, मगर बस से बस ये चीज़ होगी तो ये अगर ये अच्छी चीज़ है, गुड चीज़ है या नहीं है, क्या नहीं है ना। तो जो भी सुनने वाले मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपने आप को खुद मैनेज करें और अपने आप से बात करके, और पहले है ना अपने आप को कंफर्म करो, अपने आप को तो आप है ना रेडी करें। फिर आप दूसरे से पूछेंगे तो फिर दूसरे से आपको फीडबैक मिलेगा कि देखिए कितने % आपको कहना है, तो आपको खुद को खुद है ना इंकरेजमेंट जो है ना वो आ जाएगी कि यस
मुझे इतना वो हुआ खबर, मगर पहले आप तो स्टडी कर लें कि मैंने स्टडी की नहीं है, मुझे नहीं पता, मगर मैं जाके है ना बात, तो मुझे कोई भी कुछ कह सकता है, वही चीज़ मेरे जहन में रह जानी है, चाहे वो अच्छी कह दे, वो बुरी कह दे, तो मेरे से बुरी आ गई तो वो सारे क्रिटिसिज्म हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगी चीज़। तो पहले मेक श्योर अपने आप को सेटिस्फाई करो, मेरा ये है अपना स्टैंडर्ड भी अपना हर चीज़ में, हर चीज़ में, नॉट ओनली क्रिकेट, हर चीज़ में पहले अपने आप को जो काम करने जा रहे हैं उसमें अपने आप को सेटिस्फाई करें कि आया आप कितने परसेंट, वो खुद ब खुद जवाब आएगा, आपको खुद ब खुद जवाब मिलेगा कि कितने परसेंट है, तो आप कितनी जगह छोड़ भी देंगे कि नहीं वाकई माई बॉडी जो है ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो ये ऊपर अल्लाह पाक का ये कानून है कि मतलब ऐसा अल्लाह का मखलूक को हमें ख़ास तरह तो मुस्लिम हमें बड़ी काफ़ी चीज़ों पे है ना अब वो ताकत दी है कि आप कितने तरीके से है ना चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, निकल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अल्लाह को याद करें, आपको कितनी चीज़ें पढ़ने की हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लेके साथ चले और चलना चाहिए। मुसलमान को जो चीज़ें बताई गई हैं उसको कम से कम है ना ज़रूर पूरी करने की कोशिश करें और इसके ऊपर सादिक कदम भी रहें, तो उससे इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ ना कि आप तरक्की क्योंकि आपको खुद सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं जब ये चीज़ कर दी, मैं ये कर रहा हूँ और मुझे कोई ऐसी फ़िक्र तो अल्लाह ताला की तरफ से भी आपको ना बिल्कुल वो मदद मिलती है कि तो हमारा इस्लाम हमें ये चीज़ बताता है, तो इस्लाम को फॉलो ज़रूर करना चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए, साथ साथ लेके चलना चाहिए, हर चीज़ साथ है, तो इसको भी हम साथ लेके चलेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा। So yeah, that was the conversation that I had with him on August 2nd, 2024. I don't want to call it an interview because honestly it wasn't really an interview. It was a pretty casual conversation. However, I really hope that you all enjoyed this video. I'm just really grateful for the opportunity that I had, that I was able to talk to this basically legend. I hope that I was able to do justice to his words and to what he said through this video. If you enjoyed the video, please subscribe to my channel and give this video a like, and I will see you guys in the next one. Bye!